realization account, debit side, credit side. First of all the assets. First of all the assets. Jasanji, turn the camera on. All the assets, but you know we have to leave some assets. We have to leave some assets. What we will leave? We will leave cash, we will leave bank, we will leave provision. All other assets we will write. So start writing, solve in your notebook simultaneously, side by side. To debtors, to investments, stock, to plant and machinery. These are the assets we have. So all the assets we will write here. ये हमने सबसे पहले सारी assets नोट कर ली. All the assets are written there. You all must have got the news from 2nd of August. Your schools are reopening and you will come to the school as usual. So be ready now for the show. Everyone, prepare yourself properly for the classes from Monday onwards. No online classes. Everything will be face to face. Face to face. So be prepared. All those who have not been following the instructions, उनको अब पता चलेगा, but the music they have to face. तमन्ना, turn the camera on. इसके बाद आपको इधर क्या लिखनी है? Liabilities, all the liabilities, right? क्या क्या है हमारे पास? Provision, provision for bad debts. We have Mrs. A's loan, Mrs. B's loan. Creditors and bill payable. Creditors and bills payable. Mrs. A's loan and Mrs. B's loan. They are outsiders for the firm. They are the outsiders for the firm because partners are A and B. Their wives are treated as outsiders. It is outside debt. It is outside debt. Amount लिख लीजिए. Okay.
Arshit joining late. From Monday, Arshit, schools are reopening. You know that? Keep yourself ready. Keep your work ready. And be regular now. इसके बाद पॉइंट्स पे आ जाइए. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें. किस किस चीज से कितने कितने पैसे मिले. वी विल सी दैट. पे अटेंशन. बाय बैंक. यहां तक तो ये सारी क्या हो गई. Outstanding expenses also there. ये सारी थी हमारी लाइबिलिटीज. अब आ जाता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस असेट से कितने पैसे मिले. किस असेट से हमें कितने पैसे मिले. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है हमारा. तो आ जाइए. सबसे पहले स्टॉक. हाफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू. स्टॉक है आपका 40,000. 40,000 का हाफ 20,000. 20,000 पे 10% लेस 2,000. 18,000 हो गए. हाफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% लेस. टोटल स्टॉक 40,000, उसका हाफ 20,000, उसमें 10% डिस्काउंट, इट इज 18,000. बाकी जो स्टॉक बचा, इट वॉज टेकन ओवर बाय ए. इट वॉज टेकन ओवर बाय ए. तो यहां नीचे लिख देते हैं बाय ए. जो है बाकी का बचा हुआ आधा स्टॉक ले गया एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू. बाकी का बचा हुआ 20,000 रुपीज का स्टॉक टेकन ओवर बाय ए एट 20% मोर. 20 का 20% इज 4,000. 24,000. ए ले गया 24,000 में बाकी स्टॉक. फिर है आपका पॉइंट नंबर 3, असेट रियलाइज्ड प्लांट एंड मशीनरी. सबकी वैल्यू दे रखी है, किससे कितने कितने पैसे मिले. ट्रक 1,20,000. ट्रक. गुडविल डेटर्स उसमें लिखा है बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू 5,000. 5,000 रुपए बैड डेब्ट हो गए. टोटल डेटर्स आर 30,000. सो रिमेनिंग 25,000 वी रिसीव्ड. हाफ इन्वेस्टमेंट. हाफ
half investment was sold at book value. Total investment is 10,000, उसकी half 5,000 और half investment नीचे लिखा है A promised to pay Mrs. A's loan and took away half investment at 10%. इन्वेस्टमेंट भी ले गया A, इसमें स्टॉक भी लिख दीजिए प्लस इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। 5,000 की जो बची हुई इन्वेस्टमेंट थी वो A ले जाएगा 10% डिस्काउंट पे। सो 5,000 माइनस 500, 4,500 और जोड़ देंगे इसमें। सारी असेट्स को बेच के 2,93,000 रुपीज आ गए हमारे पास। 2,93,000। इस साइड आ जाते, अब हम करेंगे सारी पेमेंट्स। नाउ वी विल डू पेमेंट्स। Point number 2, during the course of dissolution, a liability under action for damage was settled at 12,000 against 10,000 included in creditors. Creditors में 10,000 है जो हमने 12,000 देके सेटल किए, ये आ गई पेमेंट। ए ने कहा था आई विल पे माई मिसेस लोन, तो हमने ए के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कितना लोन था? 15,000। A has promised to pay Mrs. A's loan, so that amount is also adjusted there. अब एक पॉइंट जिसके लिए क्वेश्चन करा रहे हैं, पॉइंट नंबर लास्ट 5, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल। ट्रेड क्रेडिटर्स and bills payable. Everybody pay attention, this is very important point. Let me see who is there. Ashay. Trade creditors and bills payable were due on an average basis of 1 month after March, 31st March. समझे आप? आपका 31 मार्च को जब ये फर्म डिसॉल्व हो रही है, उससे 1 महीने बाद पेमेंट होनी थी क्रेडिटर्स को और बिल पेबल को, 1 महीने बाद। लेकिन क्योंकि आज फर्म डिसॉल्व हो रही है, हम उनको पेमेंट अभी कर दे रहे हैं। एंड बिकॉज वी आर मेकिंग पेमेंट अर्ली, दे आर गिविंग अस डिस्काउंट। ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल हमें उसमें डिस्काउंट मिल रहा है बिकॉज वी आर मेकिंग अर्ली पेमेंट। और अर्ली पेमेंट क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म डिसॉल्व हो रही है और उनको हमने पेमेंट करनी थी आफ्टर 1 मंथ, सो दे आर गेटिंग पेमेंट अर्ली, सो वो हमें डिस्काउंट दे रहे हैं।
that discount you have to calculate. Here I am showing you how you have to calculate that discount. Whatever amount we have to pay multiplied by rate दिया है इसमें 12%, 12 upon 100 into 1 upon 12, एक मंथ पहले, क्योंकि हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं. क्रेडिटर्स, ये वाले क्रेडिटर्स, $20,000 क्रेडिटर्स थे हमारे बचे हुए. 10,000 के क्रेडिटर हमने पॉइंट नंबर 2 में एडजस्ट कर दिए, और बाकी जो बचे हुए 20,000 के क्रेडिटर हैं उसको हमने पेमेंट करी है 12 upon 100 into 1 upon 12. ये डिस्काउंट मिलेगा हमें, ये डिस्काउंट मिलेगा. ये आ रहा है आपका 200 रुपीज. सो वी विल पे 19,800 टू आवर क्रेडिटर्स. वैसे बिल पेबल है आपके 10,000. बिल पेबल है आपके 10,000. तो 10,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12. एक मंथ है. अगर 2 मंथ होते हैं तो 2 अपॉन 12, 3 मंथ होते हैं 3 अपॉन 12, 4 मंथ पहले होता है 4 अपॉन 12. यहां 100 रुपए कम हो जाएंगे, 9,900. इसके बाद मिसेस बी का लोन 10,000, और 5,000 रुपए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ये तो हमने पेमेंट करी है आउटसाइड लायबिलिटीज की सारी. एक ये पेमेंट करी है क्रेडिटर्स को. 10,000 के जो क्रेडिटर थे हमने उन्हें 12,000 रुपए दिए डैमेज के तौर पे. फिर ये सारी पेमेंट करी है, इसलिए मैंने इसे सबको सर्कल कर लिया. ये पेमेंट है, आपको पता होगा ये पेमेंट कहां शो होनी है. यस अंशिका. So what is written under bills payable? है? So what is written under the bills payable? बिल्स पेबल On the board. मिसेस बी लोन, ये वाला ना. मिसेस बी लोन. मिसेस ए का लोन तो मिस्टर ए ने पे कर दिया था. मिसेस बी का लोन फर्म ने पे किया. ये नहीं 10,000. नाउ यू हैव टू टोटल इट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2,93,000. ये आपको बैंक अकाउंट में शो करना होगा. डेबिट साइड में ये पैसे आए हमारे पास. यू हैव टू शो दिस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट. ये आपने पेमेंट की है, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एंड टोटल करके आप निकाल लेंगे प्रॉफिट. प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी. आप जब इसको टोटल करेंगे इधर की साइड, उसमें से ये वाला टोटल माइनस करेंगे, आपका आंसर आ रहा है 86,800. Profit on realization, and this profit will be distributed between the partners in equal ratio. टोटल आप कर लीजिए. ये रहा अप टू लास्ट, यू कैन सी. इसका टोटल करके यहां लिखिए
उसमें से ये वाला टोटल माइनस कीजिए, आंसर आएगा 86,800 बिकॉज वी हैव डन ऑल द पॉइंट्स. आई एम वेरी श्योर सही आना चाहिए, बिल्कुल कोई पॉइंट मिस नहीं है. अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया तो आपने सपोज कर लीजिए क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. यू मे बी एश्योर्ड दैट क्वेश्चन इज सॉल्व. सारी जनरल एंट्री इसी में से आनी है. क्या जनरल एंट्री है? क्रेडिटर्स की. आप लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्या जनरल एंट्री है? द मिसेस लोन पेड बाय ए. आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट. एनीबडी हैज डन द टोटल? क्रेडिट साइड, raise your hand. Yes, Ansika, tell the total of credit side. 4,89,000. 4,89,000. Principal, Sir, 3,93,500. 3,93,500. ये 500 भी तो इधर. Sir, 3,93,500. Correct? Principal? no, sir. हाँ. ये 500. लास्ट में 500 तो आना ही है. संस्कार, व्हाट यू आर डूइंग? फास्ट. सही है. 3,93,500. $3,93,500. इसमें से ये माइनस कर दीजिए सारा. 86,800 प्रॉफिट आ गया. क्योंकि मंडे से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड बुक इन द स्कूल, तो तब तक हम इस चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं. मंडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट सेकंड बुक. अगस्त 2nd of August we will start the second book, for which we will take almost it should take 1 month. It's a very good chapter. कंपनी अकाउंट्स और नॉर्मल स्पीड से करने में उसे 1 महीना लगता है. लेट अस सी, वी विल रिवाइज सम अदर चैप्टर्स आल्सो. आई विल ट्राई टू डू द syllabus again after completing these chapters which are remaining. First we will do second book, then 2 chapters from the third book, and then whatever we have done earlier, that we will revise for the term exam. So once the question is solved, then you can very easily make partners capital account, and you can make bank account or cash account, in which all the things you have to take from this particular account only. Okay, thank you. God bless all of you.